Good morning, students. From today, we are going to discuss about 7th chapter of class 10th trigonometric identities. In previous video, we will discuss about probability. So now we are going to discuss about 7th chapter trigonometric identities that we have already learned in 9th standard. Also all trigonometric identities, all question based on trigonometric identity, each and every sum we have solved in 9th standard. So firstly you have to revise the all identity from 9th standard fair notebook. So let's start. What are the trigonometric identities? Listen, the first identity is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. We know that about the trigonometric ratio in 6th chapter we have discussed about there are the 6 trigonometric ratio. First one is sin theta, then cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. These are the 6 trigonometric ratio, and now we are going to discuss about trigonometric identity. So for all angle of theta, you can choose any angle, 5 degree, 10 degree, 7 degree, 30 degree, 40 degree, 60, 45, 50, 70, 78 degree, whatever, 360 degree, 393 degree, whatever degree you can choose. For all value of theta, for all angles, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So this is an identity, because it is always true for any angle, but it should be, theta should be same in sin and cos also. So sin square theta plus cos square theta equals to 1. Second identity, sec square theta minus tan square theta is always 1. For every angle of theta, sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Third one, cosec square theta minus cot square theta is always 1. You can choose any angle, 60, 30, 45, 90, 0, 25, 35, 67, whatever, you can choose any angle. For all value of theta, this is 3 basic identity you can use in each and every question where we will need. Next identity, sin theta multiply cosec theta is equals to 1. From here we can write from this identity, this implies that if I have to write sin theta, so multiply वाला cosec theta कहाँ shift कर देंगे, divide में. So in question based on trigonometric identity, या we can say in 7th chapter, we can use at the place of sin theta 1 upon cosec theta. तो sin theta के place पे 1 upon cosec theta write कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में नीड होगी तो. Then from here cosec theta is equals to 1 upon sin theta. So क्वेश्चन के अंदर cosec theta के प्लेस पे 1 upon sin theta लिख सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन में नीड होगी तो. अगर हमें आंसर में cosec चाहिए या वटेवर, अगर हमें cosec की फॉर्म में चाहिए तो हम sin को चेंज कर लेंगे, और अगर हमें cosec को sin में चेंज करना है तो cosec theta के प्लेस पे 1 upon sin theta राइट कर लेंगे. क्लियर है? देन आफ्टर दैट cos theta into sec theta is equals to 1. आइडेंटिटी नंबर 5. ये 2 आइडेंटिटी इसी से ड्राइव किए, इसलिए कोई नेम नहीं दिया इनको. cos into sec is always 1 for any angle of theta, so we can write cos theta is equals to 1 upon sec theta. तो अगर हमें cos को sec की फॉर्म में चेंज करना है तो cos theta के प्लेस पे 1 upon sec theta राइट कर सकते हैं, और अगर हमें sec theta चाहिए तो sec theta के लिए मल्टीप्लाई वाला cos कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो sec थीटा के प्लेस पे 1 अपॉन cos थीटा राइट कर सकते हैं. इट मीन्स किसी क्वेश्चन में अगर आपको sec और cosec को sin cos में चेंज करना है, sec एंड cosec को आपको sin cos में चेंज करना है, तो cosec थीटा के प्लेस पे आप 1 अपॉन sin थीटा राइट करोगे, और sec थीटा के प्लेस पे आप 1 अपॉन cos थीटा राइट करोगे. सो दीज आर द आइडेंटिटी. नेक्स्ट आइडेंटिटी, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan theta multiply cot theta is equals to 1. Tan into cot is always 1. So tan is equals to 1 upon cot theta
एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड जैसी भी होगी, tan थीटा के प्लेस पे 1/cot थीटा भी राइट कर सकते हैं और cot थीटा के प्लेस पे 1/tan थीटा भी राइट कर सकते हैं। अगर हमें tan को कोट में चेंज करना है तो tan के प्लेस पे 1/cot राइट कर लेंगे, और अगर cot थीटा को tan थीटा में चेंज करना है तो 1/tan थीटा राइट कर लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी tan आ गया है और उसे आपको साइन कोस में चेंज करना है तो आप tan थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा राइट कर लोगे, और अगर आपके पास कोट थीटा है उसे आपको साइन कोस में चेंज करना है तो कोट थीटा के प्लेस पे आप कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा राइट कर सकते हो। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जिनके बेस के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 7th चैप्टर के। एग्जाम्पल्स जितने भी हैं वो आपको रफ नोटबुक में ट्राई करने हैं देख के। अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कंसल्ट विद मी। एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 to 6 वेज है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके माइंड में कौन सा क्लिक करता है, कितना जल्दी क्लिक करता है, उतना जल्दी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर के साथ साथ बीच में प्लस का साइन भी आ रहा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके की फॉर्म में गिवन है तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कोई भी एक एग्जांपल राइट करता हूँ, बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमें एलसीएम लेके। एग्जांपल मैंने राइट किया लाइक दिस वन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, बीच में प्लस या माइनस का कोई भी साइन आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर आ रहा है, सेम डिनोमिनेटर आएगा तो सेम एलसीएम आ जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर आएगा तो इस क्वेश्चन को आपको, जो आपके एक्सरसाइज 7.1 का 9 क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन होगा एलसीएम लेके सॉल्व होगा। कैसे करेंगे वो बात की बात है। दूसरा वे, चेंज इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। देखिए जो डिजिट पहले से ही साइन थीटा में कोस थीटा में, उन्हें तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो पहले से ही साइन थीटा में कोस में। साइन थीटा कोस थीटा के अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, और अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करने से सॉल्व हो जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप 1 लिख सकते हो। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो आप सेक्स स्क्वायर थीटा की जगह माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, जैसे देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी है। तो यहाँ से अगर आपको सेक्स स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और अगर कहीं सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए, अगर 2 टर्म थी तो हमने उसको सिंगल टर्म में बना दिया। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती हैं। फोर्थ आता है आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं पे भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप वहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या उससे पहले साइन कोस में चेंज करके फिर आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। तो मतलब किसी ना किसी वे में आप वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आपको यूज़ करनी पड़ सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो यूज़ होंगी, साइन कोस में चेंज करके भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, एलसीएम लेके भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिलहाल तो देखो साइन कोस में भी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अगर पहले से ही साइन कोस में गिवन है
या कहीं कुछ एलसीएम भी नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो वहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन में आएगा कि आपको कुछ जो टर्म गिवन होगी वहाँ से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और कॉमन लेने के बाद अगर आपके पास अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी और उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, वटएवर कुछ भी करना पड़ सकता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ यूज हो सकता है, बट दीज आर द वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में रैशनलाइज। 9th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिनमें हमने रूट वाले क्वेश्चन थे तो उनमें रैशनलाइज करते थे, तो होल स्क्वायर बन जाता था, नीचे आइडेंटिटी बन जाती थी, तो वहाँ के आपके रैशनलाइज करके रूट भी हटा लेते थे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता था। सो देयर आर द 5 to 6 ways we can solve the question. Let's start from first question 7.1. Before that, we will discuss about algebraic identity. In 9th standard, you have learned about algebraic identity in polynomial chapter, but today we are going to recall that. A plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. A plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. अगर आपके पास कहीं पे a square plus b square है और उसे आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, तो आप कैसे राइट करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab आप शिफ्ट कर दीजिए माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी राइट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कहीं पे क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब साइन की पावर 4 थीटा है, 2 to 4 थीटा, और कोस की पावर भी 4 थीटा है, तो साइन पावर 4 थीटा और कोस पावर 4 थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, हम जानते हैं। लेकिन 4 को स्क्वायर का स्क्वायर और 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहीं पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड ब्रैकेट क्या है कोस स्क्वायर थीटा, उसका लगा सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2 ए फर्स्ट ब्रैकेट क्या है साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड ब्रैकेट क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप यहाँ से सॉल्व हो गया, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। ये भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th। ये 12th क्वेश्चन तो हो ही गया, जिसमें देखिए आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन था आपका कोस पावर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा को चेंज करना है इस फॉर्म में, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे ना तो साइन कोस में चेंज कर सकते आप, ना ही आप एलसीएम ले सकते हैं, ना ही आप जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, सिर्फ इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं कोई लग रही, रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या किया हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a प्लस बी होल क्यूब, वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपके एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी, क्वेश्चन नंबर है आपके साइन पावर 6 थीटा, हाँ 16th क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होगी। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होगी, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देन ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। वेयर एवर यू a1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, इट मीन्स ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इट मीन्स
ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ना कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये रॉन्ग होगा आपका। ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ आपको स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, ना कि 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करना है। बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2ab भी आता है, वो आपने यहाँ पे राइट नहीं किया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इन मिस्टेक्स का आपने ध्यान रखना है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपने 9th में किए और प्रीवियस 10th क्लास के बच्चों ने किए। सो एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, express all trigonometric ratio in term of sec theta for angle theta. It means all trigonometric ratio. There are the 6 trigonometric ratio. First one sin theta, then cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, cosec theta. और सभी को आपको sec theta की फॉर्म में चेंज करना है। You can see on page number 117 means second page of chapter. There एक टेबल बनी हुई है वहाँ पे और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक मीन्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन की फॉर्म में भी लिखा है, सबको कोस की फॉर्म में भी लिखा है, सबको टेन की फॉर्म में भी लिखा है, सबको कोट की फॉर्म में लिखा है, सेक की फॉर्म में भी लिखा है, कोसेक की फॉर्म में भी लिखा है। बट लिख कैसे सकते हैं? टेबल तो हम लर्न नहीं कर सकते। देयर इज अ वे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो in the form of sec theta. Listen, solution. सबसे पहले आपको साइन को लिखना है सेक की फॉर्म में। कैसे लिखें? क्या साइन और सेक की कोई आइडेंटिटी है? नो। सेक और कोस में रिलेशन होता है क्योंकि सेक 1 कोस होता है। अच्छा, क्या साइन और कोस की कोई आइडेंटिटी है? विच वन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन अकेला रखना है, बाकी उधर शिफ्ट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बिकॉज साइन को कोसेक की फॉर्म में रखना है तो साइन आपने अकेला कर लो। हाँ जी, कोस तो नहीं चाहिए, सेक चाहिए, तो कोस के प्लेस पे सेक राइट कर सकते हैं। कैसे? 1 सेक थीटा। स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, मैंने स्टेप बढ़ाया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यस सर नो? बिकॉज यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है और दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो एलसीएम कैसे करेंगे? अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। साइन कौन सा है? माइनस का। ऊपर वाले डिजिट क्या? 1। और नीचे जो भी एलसीएम है, डिनोमिनेटर है, वो राइट कर दो। और अगर आपको इस वे से समझ में नहीं आ रहा तो आप एलसीएम वाला वे अपनाइए। हाँ जी, 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में 1 का डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा? किसी भी डिजिट में 1 का डिवाइड करते हो सेम आंसर आता है, ऐसा आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो आंसर आ गया आपके सेक स्क्वायर थीटा। उसे आप न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से किसी भी डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1। और 1 को ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। सेम आ रहा है। ये इजी वे है, ये एलसीएम लेके करना है। ये बेसिक से बेसिक है, ये थोड़ा सा फास्टली ट्रिक से यूज करके कर लेते हैं। सो आपने कर लिया। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। बट क्वेश्चन में क्या कि आपको साइन थीटा को करना है और आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा। सो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन स्क्वायर का, अच्छा एक बार पहले रूट में लिख लेते हैं दोनों को। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये पूरे के ऊपर रूट लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। आगे साइन स्क्वायर थीटा तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसके ऊपर तो रूट जो लगा है ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। हाँ जी, ये माइनस आ गया तो रूट होगा नहीं, रूट के अंदर ही रहेगी ये डिजिट। अपॉन में कोई माइनस प्लस नहीं है, अलग है डिजिट, तो इसका रूट ले सकते हैं, स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन थीटा को हमने सेक थीटा की फॉर्म में लिख दिया। मीन्स इधर अकेला साइन है एक तरफ और एक तरफ अकेला सेक है। सेक के अलावा भी कुछ नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं कि सेक और टैन कोस कुछ मिक्स हो क्या रहा है। साइन को सेक की फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब अकेला साइन और अकेला सेक ही होना चाहिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चलेगा, जैसे सेक के साथ कोस लिख दिया या टैन लिख दिया या कोट लिख दिया, नहीं। साइन तो साइन, सेक तो सेक। अब हमें लिखना है कोस को सेक की फॉर्म में, तो ये तो सीधा सीधा कि कोस क्या होता है 1/सेक। अब टैन को लिखना है सेक की फॉर्म में। आप देखिए कि टैन और सेक की कोई आइडेंटिटी है, होगी, है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको टैन को लिखना है सेक की फॉर्म में, मीन्स टैन थीटा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, सेक थीटा की फॉर्म में। मतलब एक तरफ तो अकेला टैन और एक तरफ अकेला सेक, तो टैन को अकेले को रखना है, यहीं रख लेता हूँ एक बार मैं। अब इस क्वेश्चन से आ जाओ यहाँ पे, माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या है 1, सेक स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब इस टैन स्क्वायर को पॉजिटिव में कर लेते हैं। पॉजिटिव में कैसे करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया। हमें अकेला टैन चाहिए था, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट लिया, स्क्वायर हट गया। यहाँ पे रूट लेंगे तो स्क्वायर नहीं हटेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा के साथ क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, और माइनस वाली डिजिटों में ऐसे रूट लिया नहीं जाता। तो अकेला टैन, अकेला सेक, वी कैन राइट टैन थीटा को सेक थीटा की फॉर्म में राइट कर दिया। अब कोट को सेक की फॉर्म में राइट करना है, टैन का इन्वर्स कर देंगे, सेक इक्वल्स टू सेक होता ही है। कोसेक के लिए साइन के लिए जो फॉर्म निकाली थी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसका इन्वर्स कर देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन्वर्स करो चाहे रेसिप्रोकल करो, एक ही बात है। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। सो ये क्वेश्चन जो है, वैसे तो सारे क्वेश्चन हम इस बुक के भी 9th में कर चुके हैं, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप 9th में कर चुके हैं, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगा कि आपको करना कैसे है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले वापस से राइट करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को जो आप यूज़ कर रहे हो उसे आप पहले वापस से राइट करोगे। पहले आपने क्वेश्चन राइट कर दिया, फिर LHS में सॉल्यूशन में कर रहे हो तो LHS राइट करके और आप वापस से LHS का पार्ट राइट करोगे। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, LCM नहीं ले सकते, रैशनलाइज नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लस वाली तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे लग नहीं रही, तो हम क्या करें, छोटा सा टर्म है, क्या करें, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, कॉमन ले लेंगे कोस स्क्वायर थीटा। जब भी कॉमन लेते हैं आपको पता है कि ब्रैकेट शो करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1, कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है, माइनस का कोट स्क्वायर शिफ्ट करो, 1 प्लस कोट स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस कोट स्क्वायर के प्लेस पे कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर के प्लेस पे 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या राइट कर दिया मैंने, कोसेक स्क्वायर। अभी भी जो चाहिए वो हमें मिला नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब स्क्वायर क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर था, कोसेक का मतलब 1 साइन स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 ही है, स्टेप नहीं बढ़ा रहे। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और हम पता है कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा करगा, कोस अपॉन साइन तो जाता है कोट थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो कोट के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। इक्वल्स टू RHS, हैंस ब्रो। इजी है क्वेश्चन, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस कर सकते हो, कॉमन लेके सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, हिंट दे रहा हूँ, आसान आसान क्वेश्चन है, कैसे करना आपको। चेंज इनटू साइन कोस। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आप, चेंज इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा में चेंज कर लेना, देन आपको छोटा सा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद कुछ डिजिट कट जाएंगी, कुछ मल्टीप्लाई होगा और सॉल्व हो जाएगा। मेनली फर्स्टली आपको स्टार्ट करना है साइन कोस में चेंज करने से। साइन कोस में कैसे चेंज करोगे, एक क्वेश्चन करके बता ही देता हूँ मैं आपको। आपके पास क्वेश्चन है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे सोल्व करेंगे, सेक के प्लेस पे साइन कोस में कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। सेक थीटा के प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। साइन में पहले से ही है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेक के प्लेस पे 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, इस ब्रैकेट का तो हो जाएगा एलसीएम, बाकी में कोई चेंज नहीं। 1 अपॉन कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यू नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी बताना भूल गया था मैं। a माइनस बी ए प्लस बी, वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। चलो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस 6 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर, या वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। न्यूमरेटर पार्ट का न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर पार्ट का डिनोमिनेटर पार्ट से मल्टीप्लाई। तो कोस थीटा का सिर्फ कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर पार्ट का न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। यू नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्या राइट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। यही आपको प्रूव करना था, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको साइन कोस में चेंज करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी साइन कोस में चेंज करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की हिंट है, चेंज इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा में कोस थीटा में चेंज करना है, देन आपको लेना है एलसीएम, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस करना। 6th क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज करना है, ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आई कोई दिक्कत आए तो आप डिस्कस कर लेना। 7th क्वेश्चन इजी है, बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ऐसा भी वे है कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और आप राइट हैंड साइड बना लोगे, लेकिन कभी कभी उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर ना लगे तो इधर से कुछ सॉल्व करके छोटा सा आंसर करो, इसको भी सॉल्व करके आंसर करो, दोनों को इक्वल आ जाएंगे तो मतलब हैंड्स प्रूव है। कैसे करेंगे साइन कोस में चेंज कर लो, इसे साइन कोस में चेंज कर लो, LHS पार्ट को चेंज इनटू साइन कोस, फिर सॉल्व कर लो। फिर सॉल्व करने के बाद एक सिंप्लीफिकेशन होकर आंसर आएगा। फिर राइट हैंड साइड चूज करो, उसमें भी पहले साइन कोस देन एलसीएम। पहले साइन कोस में चेंज करोगे फिर एलसीएम लोगे तो आपके पास दोनों चीज़ें वैल्यूएबल इक्वल आ जाएंगी, तो आप क्या बोलोगे कि हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 इजी वे में भी हो सकता है और टफ वे में भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है tan अल्फा tan बीटा। देखिए कितने वे बनते हैं, रैशनलाइज करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रूट नहीं है। एलसीएम ले नहीं सकते बिकॉज एक ही फ्रैक्शन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी कोई लगेगी नहीं, तो दो वेज बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर साइन कोस में चेंज करना। अब अगर हम साइन कोस में चेंज करते हैं, देखो साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन, फिर ऊपर दो फ्रैक्शन बन गया एलसीएम लो, नीचे दो फ्रैक्शन बन गया एलसीएम लो, फिर बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ईजी वे क्या, देखो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो हम क्या करते हैं कि जो 10 के अलावा कोट और अल्फा और कोट बीटा है, उन दोनों को भी 10 के साथ रिलेशन है ना, उन्हें 10 में चेंज कर लेंगे। सॉल्यूशन LHS 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। हाँ जी, कोट अल्फा के प्लेस पे क्या राइट करेंगे, कोट अल्फा के प्लेस पे 1/10 अल्फा, कोट बीटा के प्लेस पे 1/10। ये तो देखो बड़ी लाइन है, इसे तो छेड़ना नहीं अभी। डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास दो फ्रैक्शन बन गए, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, यस और नो, यस। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड में, ये बड़ी लाइन है, इसे छेड़ना नहीं है। हाँ जी, एलसीएम लेंगे 10 अल्फा और 10 बीटा का, ये दो डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम लेना है, दोनों अलग अलग है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 अल्फा 10 बीटा एलसीएम आ गया, एलसीएम में फर्स्ट डिनोमिनेटर का डिवाइड किया 10 अल्फा का, बचेगा क्या 10 बीटा, 10 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बीटा प्लस 10 अल्फा 10 बीटा में 10 बीटा का डिवाइड करोगे 10 अल्फा बच जाएगा, उसे ऊपर वाली डिजिट न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 अल्फा आ जाएगा। इसके बाद कैसे करना है, ये जो डिवाइड वाली डिजिट है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल करके। देखिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, इस डिजिट का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 10 अल्फा 10 बीटा तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में और अपॉन में आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। 10 बीटा प्लस 10 अल्फा या 10 अल्फा प्लस 10 बीटा एक ही बात है, ये वाली डिजिट कैंसिल होगी, रिमेनिंग क्या गया 10 अल्फा 10 बीटा। इजी है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो। 9th क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है। 10th क्वेश्चन में आपको ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² की। कैसे, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा। मैं सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व करके बता रहा हूँ। साइन पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और कोस पावर 4 थीटा को कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के साथ तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन अगर पावर 2 हो, स्क्वायर हो, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अब हमें पता है कि अगर इस पूरे ब्रैकेट को मैं a बोल दूं और इस पूरे ब्रैकेट को मैं b बोल दूं, ये बाहर वाली पावर है a पावर 2 माइनस b पावर 2, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई, इसे क्या राइट कर सकते हैं a माइनस b, a प्लस b। a मेरे लिए अंदर वाला ब्रैकेट है जिसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस b है कोस स्क्वायर थीटा, a है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, बचेगा क्या साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, क्वेश्चन में दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ जाएगा 1। 11th क्वेश्चन में आपको साइन कोस में चेंज करना है, फिर उसके बाद एलसीएम लेना है। 12th क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ, आपको करना है। 13 क्वेश्चन में भी आपको साइन कोस में चेंज करके फिर उसके बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करना है एलसीएम वगैरह लेके। 14th क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहाँ पे कोट अल्फा है, उसे आपको सिर्फ उसी कोट अल्फा को 10 अल्फा में चेंज करना है। आप इस क्वेश्चन को साइन कोस में भी चेंज करके कर सकते हो, बट वो ज़्यादा लेंथी रहेगा। इजी वे रहेगा कि एक ऊपर 10 गिवन है, आंसर में भी 10 है, तो आप उस अकेले कोट को जो गिवन है उसे आप 10 में चेंज कर लें। 17th क्वेश्चन रैशनलाइज का क्वेश्चन है, रैशनलाइज करना है आपको, क्योंकि और कुछ नहीं गिवन उसमें, और कुछ कर भी नहीं सकते हम। 16th क्वेश्चन में आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। 15 क्वेश्चन तक इजी क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं रफ नोटबुक में। सो यू हैव टू डू 15 सम इन योर रफ नोटबुक बाय सेल्फ। इफ देयर इज एनी डाउट सो यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू सो मच।